हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम पोस्ट एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे। द एक्चुअल प्लान वुड लुक समथिंग लाइक दिस। जब भी एंड यूजर हमको इनपुट देता है हम उसको डीटीओ में कैप्चर करेंगे। दिस विल बी आवर स्टेप वन। इसको फिर हम वैलिडेट करेंगे यूजिंग द बिजनेस रूल्स दैट वी यूजुअली गेट इन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द पीओ प्रोडक्ट ओनर। Once the DTO is validated and you are sure कि जो input मिला है वो proper है, you map it to the entity because it's the entity that goes in the database using JPA. Now while doing this अगर validations में issue आता है या mapping में issue आता है, so we handle it using global exception handler and we throw the exception using our own custom exceptions, not the generic ones. Now, this is our plan, would go step by step. This is how we actually create post API in enterprises. So I'm going to go to IntelliJ. यहाँ से मैं अपना project open करूँगा। मैंने already एक project create किया है, as you can see on my screen. Now the important thing here guys is Spring Boot version. Right now in early 2026 while I'm recording this video 4 version is available, तो मैंने वो select किया है, लेकिन feel free to select 3.x version अगर वो आपके screen पर दिखता है। The other details are up to you, आपको जो देना है आप दे सकते हो वहाँ पे। Important thing here is Java version. You must select Java 21 or higher if you want to work with Spring Boot 4.x. अगर आप 3.x के साथ वर्क कर रहे हो तो even Java 17 would go. As far as dependencies go, आपने देखा है मैंने बहुत minimal dependencies select किया है। Web is for creating RESTful web APIs. JPA is for persistence, इसको use करके हम database में entity save करेंगे। I'm using a proper database, not H2DB, so I'm going with MySQLDB. I'm using Lombok dependency जो मुझे annotations देता है, which will keep my code precise and clean. एंड फाइनली वैलिडेशन एज वी जस्ट डिस्कस्ड कि जब यूजर इनपुट देगा तो हम उसको वैलिडेट करेंगे यूजिंग द डीटीओ। नाउ यू कैन क्लिक ऑन जनरेट, वो आपको जिप फाइल देता है एज यू वुड नो, एंड वो जिप फाइल को आप अनजिप कीजिए। गो टू योर इंटेलिजे आईडीई और एनी आईडीई ऑफ योर चॉइस, और यहाँ से अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। वंस यू ओपन, गो टू द लोकेशन ऑफ योर फोल्डर, एज यू कैन सी आई एम इन ई कॉम हियर, और इसको आप ओपन करेंगे। वंस यू ओपन, वो आपके डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा और यहाँ पे आपके लिए ये वाला जो पैकेज हमने बनाया था थ्रू इनिशियलाइजर, यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल आपको लाके देगा। Now I have already added some properties in this application properties file, as you can see. वैसे अगर आपको ये टाइप नहीं करना है तो I've already given you the git link in the description. ये वाले GitHub पे मैंने ये वाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड किया है विदाउट द सोर्स कोड। आप सोर्स कोड मेरे साथ टाइप कर सकते हो, बट यू विल गेट द स्ट्रक्चर। तो आप इसको क्लोन कर सकते हो। इन pom.xml you will get all the dependencies here, as you can see, and you will also have the details in application properties as well. So if you go over to resources, यहाँ पे application properties में you can see you have the resources. बस आपको यहाँ पे सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज करना है जो आपके सिस्टम का पासवर्ड है। Rest of the details can still stay the same. Now, after you are done with this, a final check would be to run this application file. तो आप यहाँ पे इसको run icon को यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। This will open the terminal for you. Once that happens, आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट के 2 statements जब वो मुझे बोलता है कि Tomcat has started on a certain port number and the application is also working. Go to MySQL database and यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि डेटाबेस बना है कि नहीं बना है। सो वी गो शो डेटाबेसेस and as you can see I have a deepcoder underscore ecom database created. If you use it and go with show tables, अभी कोई tables नहीं बना हुआ है because हमने कोई model नहीं बनाया, but our initial project structure is now ready. We are all set to work with our post API now. Alright, so let's follow the plan जो हमने slide में discuss किया था। So सबसे पहले you can see I'll select my base package और वहाँ पे मैं एक और पैकेज क्रिएट करूँगा। I'll call this as model because मैं सबसे पहले अपना प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ। इस मॉडल पैकेज में I will once again create a Java class. I'll call this as product. So सबसे पहले मैं यहाँ पे @entity annotation दूंगा which will make this product a JPA entity.
Secondly, अगर आपको टेबल नेम चेंज करना है, सो यू कैन गो विथ @table annotation, उसमें नेम प्रॉपर्टी होता है, एंड आई एम गोइंग टू गो विथ प्लूरल केसिंग जो यूजुअली हम एंटरप्राइजेस में यूज करते हैं, सो आई विल गो विथ प्रोडक्ट्स हियर. Now, as I have Lombok dependency available in my project, I will not be creating getter, setter, and constructor. So यहाँ पे I would just simply go with getter. I would go with setter. I would also create a no args constructor जो JPA में compulsory होता है. And I will also get an all args constructor, which is a good practice. तो ये दोनों constructors होने चाहिए. Now coming to your model class, I would first of all create the ID. So I'd go private long ID here, and let's go with an annotation. सिर्फ variable बनाने से ID नहीं होता है. We have to go with @ID annotation, and I will also generate it automatically and define it as an identity. So I'd go with generated value annotation, and इसके अंदर जो strategy का property होता है, I'd use that, and then using this generation type enum, मैं यहाँ पे identity select करूँगा. Now one quick note guys, if all this feels slightly complicated to you, and if you're still a beginner learning Spring Boot, आई रिकमेंड कि आप मेरा स्प्रिंग बूट फॉर बिगिनर सीरीज आप वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करो वहाँ पे मेरे साथ. मैंने ये सब आपको डिटेल्स में वहाँ पे सिखाया है, बिकॉज इट कैन बी स्लाइटली डिफिकल्ट टू फॉलो दिस इफ़ यू आर अ बिगिनर. लेकिन अगर आप पहले प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, प्रॉपर एंटरप्राइज एपीआई बनाना चाहते हो, यू कैन वेरी वेल कंटिन्यू एंड देन गो ओवर देयर, व्हिच इज आल्सो नॉट अ बैड सीक्वेंस. सो लेट्स गो अहेड. नाउ वंस आई हैव एन आईडी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास बनाने वाला हूँ ऑफ माई e-com, सो आई विल ऑल्सो टेक अ नेम ऑफ द प्रोडक्ट. सो इट्स ए प्राइवेट स्ट्रिंग नेम. नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, सो विल गो प्राइवेट स्ट्रिंग description. Now here the first point of thought has to happen. नेम में यूजुअली अगर हम स्ट्रिंग देते हैं तो डेटाबेस में मैक्सिमम साइज 255 कैरेक्टर्स होता है, विच इज़ ओके फॉर अ नेम ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन डिस्क्रिप्शन में यू वुड वांट मोर कैरेक्टर्स फॉर द डिस्क्रिप्शन. सो आप यहाँ पे इसको @कॉलम का एनोटेशन यूज करके आप लेंथ प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, एंड वी कैन कॉल दिस इज 1000, विच मीन्स यू आर सेइंग टू डेटाबेस और MySQL DB दैट वी आर यूजिंग कि अगर एंड यूजर 1000 तक के कैरेक्टर्स देता है तो आप उसको अलाउ करो. अगर आप ये नहीं लिखोगे तो वो 255 कैरेक्टर्स ही अलाउ करेगा. बट रिमेंबर 1000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम फिर उसको वैलिडेट भी करेंगे. नाउ वंस वी हैव द डिस्क्रिप्शन, वी विल गो विथ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड प्राइस के लिए मैं यहाँ पे बिग डेसिमल क्लास यूज करूंगा. यूजुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डबल यूज करते हैं. डबल में प्रिसिशन एरर आता है थोड़ा सा. सो हम एंटरप्राइजेस में वी फॉलो बिग डेसिमल्स, नॉट डबल. बिग डेसिमल इज मोर एक्यूरेट इन दैट सेंस. एंड अगर आप चाहते हो कि प्राइस का कोई मिनिमम वैल्यू हो, विच मीन्स वो नेगेटिव में नहीं हो, तो उसका वैलिडेशन भी हो सकता है, बट नॉट इन एंटाइटी. रिमेंबर इट ऑल हैज टू गो इन DTO. कीप योर एंटाइटी क्लीन. नाउ प्राइस के बाद आई वुड ऑल्सो क्रिएट अ स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट कि भाई प्रोडक्ट एक्टिव है, आउट ऑफ स्टॉक है, या कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो चुका है. उसके लिए मैं enum बनाऊंगा. सो आई विल गो टू माई बेस पैकेज. आई विल वंस अगेन क्रिएट अ पैकेज. आई कॉल दिस एज enums, एंड यहाँ पे आई विल वंस अगेन सेलेक्ट जावा क्लास, लेकिन लिस्ट में से मैं enum सेलेक्ट करूंगा, एंड आई गिव द नेम एज प्रोडक्ट state, sorry, I'll go with camel casing properly, product status. Now okay, let's say please add it and don't ask again. Now here in product status enum मैं 3 constants define करूंगा. सबसे पहले I'll go with active, अगर product active है तो. then I will say not active, अगर product not active है, and I can say out of stock. हम यूजुअली यहाँ पे कैमल केसिंग यूज नहीं करते हैं enum कॉन्स्टेंट्स में. वी गो विद अंडरस्कोर केसिंग, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है. सो नाउ दैट आई हैव दिस enum, मैं ये enum को यूज करूंगा अपनी एंटिटी में, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल हियर, प्रोडक्ट स्टेटस. लेट्स इंपोर्ट दिस. लेट्स गो विद प्रोडक्ट स्टेटस. ये हो गया हमारा प्रोडक्ट स्टेटस फील्ड इनसाइड अवर प्रोडक्ट एंटिटी. नाउ
आप इसको चाहिए तो ऐसे रख सकते हो, लेकिन डेटाबेस में ये वाले प्रोडक्ट स्टेटस को वो 0, 1 और 2 कंसिडर करेगा, विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल। तो वो आपको एक्टिव नॉट एक्टिव वैल्यू नहीं बताएगा, वो आपको 0, 1, 2 लिखेगा। Sometimes in databases it is confusing to see these binary numbers. So what I do, sorry, it's not binary, it's 0, 1, 2. So what I usually do is I use an annotation @enumerated, और यहाँ मैं इसको बोल सकता हूँ कि प्लीज मुझे ऑर्डिनल्स नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज चाहिए। सो मैं डेटाबेस में देख सकूँ कि ये प्रोडक्ट का वैल्यू एक्टिव है या आउट ऑफ स्टॉक है, विच गिव्स मी क्लैरिटी, दैट्स इट। नाउ ये फील्ड्स हो गया, इसके बाद डेट्स का होना जरूरी होता है फॉर ऑडिटिंग पर्पस। सबसे पहले ये प्रोडक्ट क्रिएट कब हुआ था, सो I'd go with private. I'll use instant class, don't use local date time. Instant is a proper way to work in real projects, so I'll go with instant, which comes from java.time package, and I'll go with the variable name as created at यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ मैं मैन्युअली डेट क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। हाइबरनेट के पास एक बहुत अच्छा एनोटेशन अवेलेबल है @creation टाइम स्टैम्प, और वो ऑटोमेटिकली डेट क्रिएट करके देगा। नाउ अ क्विक डेवलपर टिप, अगर एनोटेशंस अवेलेबल है तो यूज देम, डू नॉट ट्राई टू जनरेट द कोड मैन्युअली बाय योरसेल्फ, यूज फ्रेमवर्क एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट, अपडेटेड एट भी फील्ड होना चाहिए। जब भी ये प्रोडक्ट अपडेट करेगा वेंडर, जो भी वेंडर अपलोड करेगा, अगर ये प्रोडक्ट वो चेंज करता है डिटेल्स, तो हमको ये पता होना चाहिए ऑडिट के लिए कि कब चेंज किया था। सो आई विल ऐड अनदर फील्ड हियर, इंस्टेंट, I'd go with updated at here, like that. And इसके लिए भी हमारे पास एनोटेशन है, मैन्युअली जनरेट नहीं करना है। We'll call it as @updation timestamp. So update timestamp here. So this here now is my entity class, product entity class. Now important thing here is, आगे बढ़ने के पहले let's check कि ये अब database में हमारा products table create करता है क्या। So that would be a checkpoint for us. Now application already running है, हमको सिर्फ इसको यहाँ पे refresh करना है। You can drag the terminal up if you want. Once again वो यहाँ पे completely फिर से इसको reload करेगा, and once you see the last 2 lines, go back to your database. इसके पहले show tables ने कुछ भी नहीं बताया था। Now go with show tables once again. आप देख सकते हो एक products table create हुआ है, which means everything has worked fine. Now let's inspect it, so we can say description. Describe का short form is DESC, and here we can say products here, and you can see a nice table has got created. enum का value हमको properly दिखता है, created at and updated at भी बना हुआ है हमारे पास, and then usual हमारे पास name है। look at the price, that's what big decimal does for you। and finally we also have a description where the length is 1000, remember, so काफी बड़ा description भी हो सकता है हमारे लिए। that's it। now that we have entity available for us, now it's time to start creating our post API। So for that मैं यहाँ पे controller का package create करूँगा। I'll select my base package. I will go to Java class. I'll call it as product controller. Now since we are making REST APIs, यहाँ पे हमको REST controller annotation दे देना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर API एक path से start हो, so that it becomes standardized. So मैं यहाँ पे request mapping annotation use करूँगा, and I will go with /API/product. तो इस controller में मैं जो भी API लिखूँगा, remember, वो start होगा इस path से। उसके बाद मैं method में specifically define कर सकता हूँ मेरा individual path। Now since I'm making a post API, मैं यहाँ पे एक method create कर लेता हूँ। I'll call it void for now, and I will write the method name as post product. I mean आप कुछ भी दे सकते हो method का नाम, it doesn't matter. So post product here. The annotation would be post mapping, since this is what we are doing. Now again, to note that API product already available है हमारे पास, we will just add one more suffix to it. We'll say add. So API/product/add will be the API path. Now the key thing here, most people make mistake जब वो request body annotation use करते हैं और directly वो entity में यहाँ पे capture करते हैं। We should not be exposing the entity. Let me take you back to our diagram that we had already discussed.
Now this is our diagram. Look at the first step. We must capture the end user value in the DTO, not in the entity directly. अगर आप entity में capture करते हो तो आप ये DTO और validation का पूरा sequence ही आप उसको omit करते हो, which does not work in enterprise. आपको rework करना पड़ेगा उसको. So we will go back and यहाँ पे मेरे पास DTO नहीं है तो मैं DTO बनाने वाला हूँ. I'll make a separate package for it. So I will create a package. I'll call this as DTO. By the way, DTO का long form होता है data transfer object, क्योंकि data transfer करने के लिए from UI to backend हम ये use करते हैं, इसीलिए उसको DTO बोला जाता है. In this DTO package मैं यहाँ पे एक class बनाऊंगा. अब देखिए मैं class select तो किया मैंने, but I will go with a record. Okay, always create a record. And here मैं नाम दूंगा product request DTO like that. Okay. Now in parenthesis मैं वो वाले fields यहाँ पे define करूंगा जो मैं user से लेना चाहता हूँ. So let's go to entity and let's discuss this in detail. क्या आप ID पूछने वाले हो, क्या आप ID लेना चाहते हो end user से? Obviously not. ID तो Hibernate generate करेगा. Name आप ले सकते हो उससे. So मैं यहाँ पे name का data type और उसका जो variable name है वो यहाँ ले लूंगा. I'll go to DTO and यहाँ पे मैं paste कर देता हूँ comma. सेकेंड, क्या आप डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हो? यस. सो हम इसको डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे से लेके यहाँ पे लिख देंगे. थर्ड, क्या आप प्राइस पूछना चाहते हो? ऑफ कोर्स वेंडर ही है जो प्राइस डिफाइन करता है ना. सो वी विल गो विथ प्राइस ऑल्सो. लुक, मैं डेटा टाइप यहाँ पे सेम रखता हूँ, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. वैसे ये जो रूल्स है कि आपको क्या पूछना है, कैसे फॉर्म डिजाइन होता है यूआई में, वो तो आपका प्रोडक्ट ओनर बताता है. But as developer here, we can definitely make a logical guess. Next, product status भी पूछना चाहिए कि भाई product active है कि आप सिर्फ ऐसे ही ऐड कर रहे हो which is still out of stock. So ये हम status भी ले लेते हैं यहाँ पर. Now next thing here would be कि क्या आप उसको ये पूछना चाहते हो कि आप कब create कर रहे हो, वो date select करो. नहीं, वो तो आज का ही date होगा. And updated ad तो उसको vendor को तो कोई इससे लेना देना नहीं है कि कब अपडेट होता है प्रोडक्ट. सो इट इज कंप्लीटली आवर कॉल, आवर सिस्टम जनरेटेड है ये, क्रिएटेड अपडेटेड, तो ये नहीं लेंगे. सो बेसिकली वी एंड अप हैविंग दीज 4 फील्ड्स इन अवर DTO. अब यहाँ पे कोई एनोटेशन का जरूरत नहीं है. अगर आप सोचते हो कि गेटर सेटर कहाँ पे, रिकॉर्ड में गेटर सेटर ऑलरेडी क्रिएट होता है, वैसे सेट गेटर होता है, इसको हम एक्सेसर्स बोलते हैं. मोर ऑन दैट लेटर इन सम अदर वीडियो. राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रोजेक्ट हियर. तो हमारा DTO तो बन गया. आई गो टू द कंट्रोलर और वो वाला जो DTO है मैं उसमें रीड करूंगा. सो मैं प्रोडक्ट रिक्वेस्ट DTO को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. ना अज्यूमिंग कि मेरा जो यूजर ने एंड वैल्यू दिया है वो इस DTO में है. माई नेक्स्ट स्टेप एज पर माई डायग्राम was to now map this DTO to entity. लेकिन ये लॉजिकल स्टेप है और हम कंट्रोलर में कुछ भी नहीं करते. रिमेंबर, डेवलपर टिप अगेन, कंट्रोलर शुड ऑलवेज बी थिन, विच मीन्स इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं आना चाहिए. अब यहां से हम सीधे सीधे सर्विस के पास जाते हैं और उसको डेलीगेट करते हैं वर्क. तो मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करूंगा एज एन एक्सटेंशन ऑफ माई बेस पैकेज अगेन. सो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा डॉट सर्विस और यहाँ पे इस पैकेज में अभी मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा फॉर प्रोडक्ट सर्विस. आई विल कॉल दिस एज प्रोडक्ट सर्विस. वंस अगेन आई विल गो विथ P as capital. Make sure it's all camel casing properly. Now let's make it a service by giving @service annotation. And यहाँ पर we will define a method और फिर we will continue our work from here. So let's inject product service in controller. So I'll go with private. इसको कभी भी फाइनल मार्क करना चाहिए, प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोडक्ट सर्विस. अब आपके पास दो चॉइस है यहाँ पे, या तो आप फाइनल निकाल के इसको @AutoWire एनोटेशन दे सकते हो, जो मैंने देखा है काफी प्रोग्रामर्स देते हैं. बट गाइस, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हम यही सिखाते हैं लोगों को कि जो आप अपना एज अ हॉबी प्रोजेक्ट या लर्निंग प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें और एंटरप्राइज प्रोजेक्ट में काफी डिफरेंस होता है. हम एंटरप्राइजेस में ऑटोवायर नहीं करते हैं बिकॉज हम जब टेस्ट करते हैं ऑब्वियसली वी डू हैव डिफरेंट टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स. कंट्रोलर का भी सिंटैक्चुअल टेस्ट होता है और सर्विस का मॉकिंग और यूनिट टेस्टिंग होता है. और उस टाइम पे ये जो ऑटोवायर एनोटेशन है वो ब्रेक हो जाता है. सो वी डोंट यूज ऑटोवायरिंग, हम आगे का सोच के काम करते हैं. इसीलिए
द बेटर वे इज टू गो विद अ कंस्ट्रक्टर. सो हम यहाँ पे फाइनल करते हैं. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज दिस इज स्टिल अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन बट वी यूज कंस्ट्रक्टर. लेकिन हमको कंस्ट्रक्टर बनाना नहीं है. वी हैव लॉम्बॉक, सो हमारे लिए और इजी हो जाता है. वी जस्ट गो एंड से ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड आप देखिए यहाँ से एरर निकल जाता है. So this is a proper way to inject a dependency inside your controller or service or anywhere wherever you are doing it. Now that I have product service, मैं यहाँ पे इसको call करूँगा and I'm going to say, hey, can you please create a method this post product for me in the service class? और मैं आपको ये product DTO दे देता हूँ, which means I'm delegating the entire logic to the control to the service. मैं controller में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ. I'll use ID to generate this method. तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास. Now let's work on our next step which was mapping DTO to entity, right? लेकिन उसके पहले हमारे पास validation है. Let's look at the diagram quickly. So look at this. This is our diagram. और यहाँ पे validation का step आना ज़रूरी है because once you have validated DTO उसके बाद आप map करते हो. तो where is the validation here? So let's go over to our DTO that we created और यहाँ पे हम validation annotations add करेंगे. Now name is a string और blank नहीं होना चाहिए. So we go with annotation not blank here, right? लेकिन अगर blank मिलता है तो आप message क्या message आपको देना है end user को वो आप define कर सकते हो. You can say name cannot be blank here like that. Next, since it's a string 255 characters से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वो आपको एक थोड़ा सा validate करना पड़ेगा. So you can say size and max you are saying I will take it as 255. इसके ऊपर characters मैं accept नहीं करना चाहता हूँ. यहाँ पे भी आप वैसे मैसेज दे सकते हो अगर आपको देना है तो. मैसेज कैन बी एवरीवेयर. मैं हर जगह नहीं दूंगा. हियर आई कैन गिव इट. आई से not more than 255 chars and yeah, name not more than 255 chars. Now let's come to description. Description guys 1000 दिया है हमने, so we can take this size and we can say max size is 1000 and description cannot be not more than 1000 characters. एंड यहाँ पे भी लेट्स गो विथ नॉट ब्लैंक बिकॉज डिस्क्रिप्शन में भी हम ब्लैंक नहीं चाहते हैं. सो वी कैन से डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी ब्लैंक. प्राइस में मिनिमम वैल्यू आप चाहते हो कि 0 हो, नेगेटिव नहीं हो. सो यू कैन गो विथ @min और यहाँ पे 0 हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज अ गुड वैलिडेशन टू हैव. enum में प्रोडक्ट स्टेटस इज योर enum, तो यहाँ पे कुछ देने का जरूरत नहीं है. वैसे अगर आप वो enum वैल्यू प्रॉपरली नहीं मैप होता है तो वो एनीवेज एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. सो इट्स अ इनबिल्ट वैलिडेशन दैट स्प्रिंग विल हैव फॉर अस. तो दिस इज अवर वैलिडेशन रूल्स. अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो कंट्रोलर में जाके हमको यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा एनोटेशन ऐड करना है @valid and this will activate all our rules that we have defined in this DTO. Now let's check this before we go forward, क्योंकि ऐसे ही हम टाइप करते रहे और हमने चेक भी नहीं किया स्टेप, तो फिर इट्स नॉट अ गुड आइडिया. सो आई गो टू माई पोस्टमैन. उसके पहले लेट मी refresh this because refresh करना जरूरी है so that it takes stock of the new code and let's also see कि ये चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है मैंने कोई टाइपो कर दिया हो, लेकिन it is working for me. You can see here it's working. Now I go to Postman. यहाँ पे मैं अपना API का पार्ट टाइप करूँगा localhost API/product/add. Let's make it post. I go to the body में मैं raw में JSON देने वाला हूँ. Now let's see whether my validation is working. So I would go with first field. देखिए DTO में जो field है आपको वही field देना है यहाँ पे. In this DTO you have name. So go with the same thing here. Go with the name here like this. उसके बाद में let's go with description. ये टाइपो नहीं हो सकता इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर केसिंग और प्रॉपरली नहीं लिखोगे तो फिर इट विल नॉट वर्क फॉर यू. प्राइस है, सो फॉर नाउ आई विल गो विद 0. लेट्स गो हियर लाइक दिस. एंड प्रोडक्ट स्टेटस ये एक इनबिल्ट होता है, सो हम इसको प्रॉपर वैल्यू दे देते हैं एक्टिव यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी है. नाउ अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो क्या ये 200 ओके होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बिकॉज नेम का वैल्यू मिला नहीं है और हमने क्लियरली बोला है कि इट शुड नॉट बी ब्लैंक. सो लेट्स गो सेंड और आप देखो ये बोलता है इट्स अ बैड रिक्वेस्ट बिकॉज आपने नेम का वैल्यू नहीं दिया. अगर आप चाहते हो
कि आप एक बार वेरीफाई करो, तो यू कैन गो बैक, लुक एट द टर्मिनल, और सबसे लास्ट में आप देखिए ये वाला मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन थ्रो करता है। इसका मतलब हमको इसको बाद में कैच करना पड़ेगा, एंड इट सेज वैलिडेशन फेल्ड फॉर आर्ग्यूमेंट, ये वाला, एंड आप दो एरर्स बोलता है वो, विच मीन्स आपका नेम फील्ड का भी प्रॉब्लम मिला उसको, और आपका डिस्क्रिप्शन फील्ड का भी उसको यहाँ पे आगे वो प्रॉब्लम आपको दे देगा। एंड ये देखिए डिस्क्रिप्शन का भी आपको प्रॉब्लम दिया उसने, विच इज परफेक्ट। इसका मतलब है हमारा वैलिडेशन इज वर्किंग। अब आप इसको चेक कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, लेट्स से एप्पल आईफोन 3 4 whatever, and this is Apple phone something like this, right? एंड अब अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, इट्स ऑल वैलिडेटेड, इट इज 200 ओके। हाँ, प्राइस का कोई वैल्यू हमको प्रॉपर देना है हम दे सकते हैं, बट इट्स अप टू द वेंडर, उसको जो प्राइस रखना है वो रखेगा। So validation works. That's our next step, which is done. So let's go back again to IDE, and our next step now after validation is done is to do the mapping. Correct? अब हम DTO to entity mapping करेंगे. Let's look at the diagram once again. Look, DTO में capture किया, it's done, validation is done. Now we have to do the mapping from DTO to entity. अब उसको convert करना है. For this again, मैं एक नया package बना के नया class बनाऊंगा. So I would go over to my base package. I'll create a package here. I'll call this as mapper. And इस package में I will create a class, let's say product mapping, right? Because that's what I'm doing. Now आप इसको component बना सकते हो, but नहीं भी बनाओगे तो चलेगा if you are going to work with static. मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. Now in this I'll create a method. I'll initially go with a void. मैं क्या करने वाला हूँ इस method में? My plan is to convert or map DTO to entity. अब मेरे पास में DTO तो अवेलेबल है, तो मैं यहाँ एज एन आर्ग्यूमेंट लेता हूँ इसको, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट DTO, एंड रिमेंबर इस मेथड के लॉजिक में ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं फाइनल भी मार्क कर देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट DTO हो गया, एंड मेरे पास अब मैं इसको एंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो लेट्स मेक अ सिंपल एंटिटी पोजो। सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट हियर, एंड यहाँ पे अब हम वन बाय वन जो DTO में फील्ड अवेलेबल है उसको प्रोडक्ट में डाल देंगे। 4 फील्ड्स अवेलेबल एज यू नो, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड स्टेटस। सो वी गो प्रोडक्ट डॉट सेट नेम फर्स्ट, एंड लेट्स गो टू DTO, एंड यहाँ से हम नेम ले लेते हैं। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि गेट नेम नहीं है DTO में, गाइज DTO इज अ रिकॉर्ड, रिमेंबर, और रिकॉर्ड में हमारे पास एक्सेसर्स होते हैं, दीज आर एक्सेसर्स मेथड्स, वो गेटर नहीं एक्सेसर बना के देता है, सो उतना ही चेंज होता है। इनफैक्ट दिस इज मोर कन्वीनियंट आई बिलीव। नेक्स्ट लेट्स गो विद डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, product dot DTO dot description. See, it's coming from DTO, right? Next, let's go with price dot set price, and let's go to DTO and take the price out from it. So there it is, price. And next, now we will go over once again, we'll do set status, and let's take the status from the DTO, we call it product status. Now return this entity, guys, that's more important क्योंकि service में चाहिए, and let's change this to product. Now there is one more approach, as I said, या तो आप इसको component बनाओ @component and then उसको आप inject करोगे service में, या फिर आप इसको static method बना सकते हो. The reason we make it static is because now we don't need an object of this class to call this method. हम directly class name use करके भी call कर सकते हैं, जो मैं करने वाला हूँ. It's kind of more convenient. I've seen lot of people in my training batches, वो static एक बार उनको बताओ तो वो static ही use करते हैं. So it's more convenient, as I said. So I go to product service, and यहाँ पे, as I said, I'll use the class name directly, product mapper, product mapping dot, and map DTO to entity. Let's pass the DTO. So we'll go product request DTO, और ये हमको entity देता है. So we'll take the entity here, product is equals to, ये हो गया हमारा mapping DTO to entity. Perfect. Now that we have covered the next step also, which is this mapping is done. Now
Last step is to just put the entity in the database, which is persistence. For that, we need JPA repository. So I'll create a package here once again. I'll call it as .repository. And यहाँ पे I'll create an interface inside that. I'll give the name as product repository. Again, ये interface क्यों बनता है guys? I once again tell you, go to the series, the playlist that I've created for beginners. उसमें ये सब कुछ concept है. ये project के बाद आप वहाँ पे एक बार check कर सकते हो. Repository over there. And यहाँ पे I will go extends JPA repository. My class name would be product, and the data type of my ID which is inside product is long. तो यहाँ पे मैं product को long दे दूंगा. Now let's inject this repository in the service. कैसे inject करेंगे? हमने controller में भी बात किया था. Don't go with @annotation, auto-wired annotation. Let's go product repository, और अब यहाँ पे हम लोग all arcs constructor डाल देंगे like that. So this is injection, right? Now we'll use product repository. We'll say all right, please save this, and ये product हमने save कर लिया database के अंदर. Excellent, one liner, and it gets saved in the DB. अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करने के बाद में we can then do the refinement कि कैसे होना चाहिए, end response क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और अगर exception आता है तो हम handle कैसे करेंगे globally. So इसको हम पहले refresh कर लेते हैं. Once again, it's important to check कि हमारा कोड वर्क कर रहा है. अगर नहीं वर्क करता है तो there has to be a compilation failure, तो हमको उसको फिक्स करना है. Right now it's working for me. I go to Postman. अब देखिए ये वाला इनपुट तो सही था. So the test has to be कि क्या ये डेटाबेस में जाता है. मैं इसको यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, तो क्या ये डेटाबेस में सेव होता है. So I'll click send. ये 200 ओके बोलता है, लेकिन रेस्पॉन्स इतना खास कुछ बना नहीं. कोई बात नहीं, we can work on that. ये यूजुअली डेवलपर्स डिसाइड नहीं करते हैं. अगेन ये प्रोडक्ट ओनर्स आपको बताते हैं कि क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि ये गया है कि नहीं गया है रिकॉर्ड. सो आई गो बैक टू माई DB एंड आई विल से select star from product, and oh sorry, it's products, right, plural casing. and आप देख सकते हो this is gone there. updated at date भी वही डेट लेता है जो created है, and created आपका अभी का उसने टाइम स्टैम्प प्रॉपरली ले लिया है. and this is what I had typed. Please forget the typos. I'm not worried about the values there. so ये हमारा एक यहाँ पे आ गया. now what about the other things? what other things, like for example अगर validation fail होता है, so we are getting this exception. bad request आ रहा है, लेकिन bad request नहीं होना चाहिए. हमको उसको प्रॉपरली देना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आया है, और ये वाला डजंट लुक लाइक अ ग्रेट रेस्पॉन्स. वैसे रेस्पॉन्स स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, ये एरर स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे हमको उसको बताना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम है. सो अब आप अगर इसको फिक्स करने की कोशिश करोगे तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. हियर आप देखो लास्ट में ये मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन आता है. सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से. we will create a separate class for handling exception. हमको कंट्रोलर में ट्राई कैच नहीं लिखना चाहिए. वैसे लिखोगे आप तो ये हैंडल भी नहीं होगा आपसे, बिकॉज द रीजन इज कि ये एनोटेशन की वजह से ये फेल हो रहा है. ये आपके लॉजिक या कोड की वजह से फेल नहीं हो रहा है. सो ये कंट्रोलर के मेथड के अंदर जाता ही नहीं है अगर कोड, तो इसके अंदर ट्राई कैच लिख के एक्सेप्शन कैच करने का कोई मीनिंग नहीं होता है. इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो आप उसको बाद में चेकआउट कर सकते हो. इट्स कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल एक्सेप्शन. सो राइट नाउ यू कैन जस्ट फिक्स इट. कैसे कर सकते हो आप? मैं बेस पैकेज के अंदर ही, हैंग ऑन, आई थिंक मैंने कंट्रोलर का पैकेज नहीं बनाया शायद से, या फिर मैंने ये कंट्रोलर पैकेज में लिखा नहीं है. लेट मी वेरी क्विकली फिक्स इट गाइज, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि ये बेस पैकेज में ही बन चुका है, which is kind of not how we do it in enterprise. तो हम इसको नहीं ऐसे करेंगे. तो मैं जल्दी से पैकेज बना लेता हूँ .controller, और इसको ना यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं और कंट्रोलर में डाल देते हैं. इसको रीफैक्टर कर लेना, तो आईडी पूरा रीफैक्टर कर लेगा, आपको कोई एरर नहीं आता है. इट्स वेरी सिंपल, राइट? नाउ लुक द पैकेज स्ट्रक्चर लुक एक्सट्रीमली क्लीन.
नाउ दिस इज माय बेस पैकेज। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाने वाला हूं। आई विल कॉल इट एज ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। वैसे आप कुछ भी बना सकते हो, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, बट यूजुअली गो विद दिस। यहाँ पे आप एक एनोटेशन ऐड करोगे, कंट्रोलर एडवाइस, बिकॉज आप कंट्रोलर को ये एडवाइस देना चाहते हो कि देखो अगर सब सही चलता है तो डेटाबेस में इंसर्ट कर देना, जो कि हमने देखा वो करता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है तो आप एडवाइस करते हो कंट्रोलर को कि आप डायरेक्टली एंड यूजर के पास जाके ये स्टैक ट्रेस मत थ्रो करो, हमको बोलो, हम हैंडल करेंगे। आप यहाँ पे हमने एडवाइस बनाया है आपके लिए, तो वो एडवाइस चेक करेगा, वो एडवाइस में जाएगा। अब आपको ये स्पेसिफिक जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है विच इज दिस वन, ये इसका हैंडलर मेथड बनाना पड़ेगा, तो वो कॉल करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक, अभी वॉइड लिख देते हैं, हैंडल, एंड ये वाला एक्सेप्शन था, राइट। मैंने उसको स्टैक ट्रेस से कॉपी किया है गाइस। अब यहाँ पे इसी एक्सेप्शन का एक्सेस चाहिए तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इम्पोर्ट दिस, ये ई हो गया, ये उसका रेफरेंस बना दिया मैंने आर्ग्यूमेंट में। अब क्या करेंगे, एनोटेशन देना जरूरी है। यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलर, और कौन से एक्सेप्शन का, इसका मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट क्लास का। तो आपने ये मेथड के थ्रू कंट्रोल, आपने स्प्रिंग को बोला है कि अगर ये एक्सेप्शन आता है तो ये मेथड कॉल करना, और इस मेथड के लॉजिक में आपका एक्सेप्शन का रेफरेंस भी अवेलेबल है आपके पास। अब यहाँ क्या रिटर्न करना है, वैसे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही रिटर्न करना होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल रिस्पॉन्स दे देता हूँ। आई जस्ट रिटर्न, आई से रेस्पॉन्स एंटिटी, जो कि हमारे पास एक बहुत अच्छा स्प्रिंग बूट में क्लास होता है, response entity, let me not get return here, वो मैंने टाइपो दिया है। so response entity dot, अब you can go with anything, first of all you can go bad request, जो कि आपको as I said it's a team level agreement that happens between developers, but you can go bad request, or you can say some other issue may have happened or whatever. तो यहाँ पे मैं बैड रिक्वेस्ट के साथ ही अभी के लिए जाता हूँ, बैड रिक्वेस्ट। अब आप चाहते हो कि क्या प्रॉब्लम आई वो भी आप दो, तो आप उसको बॉडी के साथ जा सकते हो। यू कैन डिफाइन अ मैसेज समथिंग लाइक, बॉडी में आप ई डॉट गेट मैसेज जो भी है वहाँ पे वो आप उसको दे सकते हो यहाँ पर, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस थिंग। अब वैसे गेट ऑल एरर से उसमें लिस्ट आता है, आपको उसको लिस्ट में लेना चाहिए, उसको आइट्रेट करना चाहिए, एक स्पेसिफिक मेथड ऑब्जेक्ट का और मेथड एरर का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, बट एज आई सेड मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी। आई जस्ट वॉन्ट टू शो सम जेनेरिक मैसेज विच इज ऑल्सो फाइन। तो आपको एटलीस्ट ये एक्सेप्शन का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे होता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। सो आई गो विद दिस रिटर्न, एंड अब मैं यहाँ पे इसको रेस्पॉन्स एंटिटी बोल दूंगा, एंड यू कैन गो विद स्ट्रिंग, बिकॉज वो एक स्ट्रिंग ही आप उसको वहाँ पे देने वाले हो यहाँ। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, आई फर्स्ट रिफ्रेश दिस। ये बनाने के बाद अब मेरा आउटपुट डिफरेंट कैसे दिखता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, राइट। सो अभी ये रिफ्रेश कर रहा है, यस इट स्टिल वर्क्स विच इज एक्सेलेंट। नाउ आई गो हियर, देखिए उसके पहले वो मेरे को इस तरीके से दे रहा था और कुछ ज़्यादा पता है नहीं मुझे कि क्यों प्रॉब्लम आया, क्यों ये बैड रिक्वेस्ट है। लेकिन अब आफ्टर हैंडलिंग दैट एक्सेप्शन ग्लोबली, अब आप देखिए ये मुझे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ एटलीस्ट प्रॉपर बताता है कि वैलिडेशन फेल हुआ है, एंड ये फेल हुआ है नेम की वजह से, बिकॉज हमने नॉट ब्लैंक दिया है। और यहाँ पे मैसेज भी डिफ़ॉल्ट मैसेज लिख के देता है, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अब आप चाहते हो कि यार इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये छोटा सा मैसेज चाहिए था, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। तो फिर इसके लिए यू कैन स्टिल वर्क विद दिस, ई डॉट गेट मैसेज है तो ये गेट मैसेज में आपको इतना सब दे दिया। उसके बाद में यहाँ से भी आप स्टार्ट हो सकता है ये, या फिर आप इसको लिस्ट को आइट्रेट कर सकते हो, और आइट्रेट करने के बाद इंडिविजुअली आप उसका मैसेज निकाल सकते हो। आई वोंट डू दैट एज आई सेड, बट दिस गिव्स अस अ क्लियर आइडिया of how post API must work. From the controller you start, you go to your, the most important thing here is go to the DTO. यहाँ पे आप उसका fields define करो जो आप end user से लेना चाहते हो, go with annotations, give the messages and all that. Again ये message ही है, यही है जो आपको वो end में दे रहा है यहाँ पे guys, देखिए name cannot be blank and all that, right? तो
आप उसको वहां पे और रिगरसली टेस्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में, ये सारा कुछ चलेगा एनोटेशन. Once this happens in your controller again, you can then use this DTO to read the values that the end user gives. Use valid to obviously activate validation. Don't do anything in controller, keep it thin. अब यहाँ पे अगर सही में जाता है इनपुट तो क्या करेंगे? Good, I was missing it, now I'll fix it. अगर एक्चुअल में ये जाता है, let's say I go 1 plus here, right? And this is 1 plus, if I say this is 1 plus 1 plus phone and like this. So अब क्या होगा? Well, if it goes in, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे response, ऐसा नहीं होना चाहिए. So यहाँ पे मैं इसको return कर सकता हूँ. I'll say return response entity. पोस्ट एपीआई में जो स्टेटस होता है हमारा, वो जनरली डॉट क्रिएटेड होता है. हम यहाँ पे डॉट क्रिएटेड लिख सकते हैं, और बेटर वे इज यू गो विथ स्टेटस. और एक HTTP का आपके पास HTTP स्टेटस कोड और HTTP स्टेटस, ये वाला एक इनम होता है, इसमें आपके पास सारे अवेलेबल है. लेट्स गो विथ क्रिएटेड एट. देखिए क्रिएटेड है यहाँ पे, डॉट क्रिएटेड, एंड देन इसको आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो सिंपल, एंड देन यू कैन गो एज अ रिटर्न टाइप एज रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट गो विद अ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर. इट्स मच मोर प्रेफर्ड लाइक दैट. अब यहाँ पे आप वैसे मैसेज भी दे सकते हो, सक्सेस एंड ऑल दैट, बट बिल्डिंग इज यूजुअली प्रेफर्ड इन पोस्ट. सो अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड इफ आई चेक माई स्टैक ट्रेस, once again it works excellent. अब आप देखिए, अगर मैं इसको डालता हूँ 1 plus node 3G something like that, and let's go with like this. Now if I go ahead, you can see it gives me 201 created. This is the status code which UI developers look at when they are working with post API. उनको ये चाहिए होता है, तो वो फिर अपने React और Angular application में properly चेक कर सकते हैं कि अगर स्टेटस ये है तो API has worked perfectly, एंट्री हो चुका होगा डेटाबेस में, पर आपको चेक करना चाहिए. सो लेट्स गो. हमने 3 रिकॉर्ड्स अब इंसर्ट कर दिए हैं, तो देखिए सारे 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास में प्रॉपर्ली आते हैं with all auto fields getting generated properly, right? So that's your post API. This is the structure and the sequence we follow in enterprise projects. अगर कोई issue है guys, so please put it in comments. I'll be creating more such videos going forward, तो आपको और भी details पता चल जाएगा, but you need to practice this multiple times to get the hold of it. I'll see you in the next clip then. Thank you very much.